न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अमृतसर हाथों में गिटार वाले की पोस्टर, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में लगे खालिस्तान जिंदाबाद की नारे। विश्व पर्यावरण दिवस, मंत्रियों ने किया प्लास्टिक प्रदूषण रोकने का आह्वान। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन को लेकर जयराम रमेश ने साधा निशाना। तो खबरें विस्तार से। हाथों में भिंडार वाले के पोस्टर्स, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी और उस दौरान मारे गए जनरल सिंह भिंडरा वाले की पुण्यतिथि के मौके पर स्वर्ण मंदिर परिसर में एक बार फिर खालिस्तान समर्थक नारे गूंजे। शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और सांसद सिमरनजीत सिंह मान जब स्वर्ण मंदिर पहुंचे तो वहां मौजूद समर्थकों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि हर साल ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धांजलि और विरोध कार्यक्रम होते हैं। इस बार भी स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसवीर सिंह रोड़े कहते हैं कि सरकार के पास आज तक इस बात का जवाब नहीं है कि सिखों के ऐसे पवित्र स्थान पर हमला क्यों किया गया। सिख अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। श्रीमान संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखां की अगवाई दे विच भाई अमरीक सिंह जी, इसी तरह भाई जनरल सवेग सिंह जी, बाबा थारा सिंह जी, अनेकों ही मर्जी बड़े गुरु के शहीद सिंघां ने भारतीय फौज का डटमा मुकाबला किया, मूँह तोड़ जवाब दिता। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਮ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੀਦਾ ਐਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ। ਅੱਜ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਸਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਅੱਜ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਰੋਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ।
ਰੋਸ ਸਿਰਫ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। पुलिस के जो इस 6 जून गल्लूगरा दिवस को मद्देनज़र सारी सिटी में पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। इसमें हमारी तरफ से नाकाबंदी, पेट्रोलिंग प्लस अलग अलग जगह पर स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट हमारी तरफ से की गई है। सर, चेकिंग और नाकाबंदी में जो कोई लॉ एंड स्थिति खराब करता है, क्या एक्शन है? जो भी लॉ को अपने हाथ में लेगा तो ही विल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितनी फोर्स लगेगी? पैरामिलिट्री भी लगाएगी? इसमें हमारी जो सिटी है इसको 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। 4 जोन्स में अलग अलग एरिया में जो इनर, आउटर और जो हमारी यहाँ आउटर सिटी से आ रही हैं जो रोड्स हैं सभी पे नाकाबंदी की गई है। नाकाबंदी करके इंटेंसिव चेकिंग की गई है ताकि कोई शरारती अंसर इस माहौल। मंत्रियों ने किया प्लास्टिक प्रदूषण रोकने का आह्वान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंत्रियों ने प्लास्टिक प्रदूषण रोकने का आह्वान किया। मंत्रियों ने गुरुवार को नागरिकों से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने और स्थिरता को अपनाने का आग्रह किया है। इस दौरान उन्होंने हरित एवं स्वच्छ भविष्य के लिए अधिक पेड़ लगाने की अपील भी की। विश्व पर्यावरण दिवस पर हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराए का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेश राम सिंह खुटिया ने कहा है, हम प्रदूषण के कारण कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ओडिशा प्रदूषण को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू का बयान। On the occasion of the World Environment Day, I would like to thanks and congratulations to the whole people of Odisha. Today is International Environmental Day. Definitely we are facing a lot of problem due to pollution, and you know Odisha government is focusing more how to streamline the pollution. You can say on the field of single-use plastic and other environmental point of view, and government of Odisha is taking necessary action how to and how could we streamline the more and more, and how could we streamline implies to the zero pollution. So today, Chief Minister Mohan Charan Manji he planted a tree and advocates 7.5 crore to be planted in the state. What do you want to say? Last year, Honorable Prime Minister has announced, basing on that, Odisha government has planted 6.65 crore seedling plantation. This year, already Honorable CM has announced
This year's probably 7.5 crores plantations will be done by the people of Odisha and then government of Odisha Forest Department. And you know, government of Odisha Forest Department is focusing how it could be stimulate the carbon emission and single-use plastics and other dust pollution also and water pollution also. Today we have launched one mobile van, technology based, which could be purify the Odisha rivers, which we have 10 rivers. This is the issue. So some of the industrial districts in Odisha, how you are going to curb the pollution in the state if we talk about an industrial area? You know, we have a lot of mines and mineral in Odisha, and Odisha is the large scale availability of mines and mineral. Basing on that, it is happening. And Pollution Control Department, Government of Odisha is taking necessary action. Today we have launched one portal also. How could we use the fly ash, how could we use the reuse for construction and cement production sector. And we have already noticed to the state, not private sector unit, and government already announced pollution point of view, zero tolerance. So last question would be that the theme was ending plastic pollution. How the government of Odisha is going to take it forward? Government is working very large scale. How could be zero the single-use plastic by the help of the NGOs, by the help of the eco club and ecologically the other people of Odisha. And coming days it will be work large scale, I think. What would be message for common people on this day today? निश्चित भावरे मु समस्तंकु आज विश्व परिवेश दिवस से समस्तंकु मेसेज देवी. Definitely my message will be that परिवेश is environmentally very important for us. Basing on that, we should work on more and more. And I have one request to the people of Odisha. This year we have planned एक पेड़ माँ के नाम पे 7.5 crores plantation will be done by the government of Odisha as well as by the cooperation of the people of Odisha. I requested to all people of Odisha, please help for the environmental, for the benefit of the people, for the next generation of the people. Thank you. Thank you. बढ़ते अगली खबर क्यों चुनाव ब्रिज के उद्घाटन को लेकर जयराम रमेश ने साधा निशाना. पीएम मोदी आज शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने चुनाव ब्रिज का उद्घाटन किया. इसी के साथ पीएम 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का उद्घाटन करेंगे, जहां पूरे देश में USBRL की चर्चा हो रही. इसी बीच कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है. सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए जयराम रमेश ने कहा है कि आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे. उन्होंने आगे कहा है कि USBRL भी ब्रह्मोस की तरह शासन में निरंतरता का एक शानदार उदाहरण है, जिसे प्रधानमंत्री कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन जिससे बच भी नहीं सकते. Tallest railway link on the Chenab Bridge today that will boost the economy and the other aspects of the J&K, especially that part of the J&K. How do you see it? Well, there is continuity in governance. But Prime Minister Modi never recognizes this, never acknowledges it, because he's, perennially in search of self-glorification and self-publicity.
This 272 kilometer long Udhampur Srinagar Baramulla railway project was sanctioned in March of 1995 when PV Narasimha Rao ji was the Prime Minister. In March of 2002, it was taken forward, declared as a national project by Sri Atal Bihari Vajpayee ji when he was Prime Minister. Now then, subsequently there have been 5 major events before Prime Minister has gone to Jammu and Kashmir today. See, this is the railway link. This is Baramulla, Srinagar, Anantnag, Kazigund, Banihal, Katra, Udhampur and Jammu. This is about 330 kilometers, but Srinagar, Baramulla, Srinagar, Udhampur is 272 kilometers. Okay, that is being dedicated to the nation, and the Chenab Bridge forms part of this link. It's between Banihal and Katra over the river Chenab. It's an iconic project. So let me tell you what are the 5 major events that took place. On April 13th, 2005, Dr. Manmohan Singh inaugurated the 53-kilometer Jammu to Udhampur. Jammu to Udhampur. Then, on 11th of October 2008, Dr. Manmohan Singh inaugurated the 66-kilometer Anantnag to Srinagar, Mazhom, which is about 15 kilometers from Srinagar. Third, February 14th, 2009, Dr. Manmohan Singh inaugurates the 31-kilometer link between Mazhom and Baramulla. So, up to Baramulla, it goes up to Baramulla. Fourth, on October 29th, 2009, Dr. Manmohan Singh inaugurates 18-kilometer Anantnag to Kazigund. Anantnag to Kazigund. Then, on 26th June 2013, Dr. Manmohan Singh inaugurates the 11-kilometer tunnel, which is the Kazigund to Banihal tunnel. So, in other words, 135 kilometers, roughly 140 kilometers, Baramulla to Srinagar, Srinagar to Anantnag, Anantnag to Kazigund, Kazigund to Banihal, Jammu to Udhampur has been already inaugurated by Dr. Manmohan Singh. Now take Udhampur to Katra. That was also completed before 2014. But there was election code of conduct. So Dr. Manmohan Singh couldn't inaugurate. But on 4th of July 2014, that is 39 days after Mr. Narendra Modi became Prime Minister, he inaugurated the Udhampur to Katra link. In other words, out of 272 kilometers, almost say, two-thirds, roughly 100 kilometers was left between Banihal and Katra, and that is being dedicated to the nation, and that's where the Chenab project, the Chenab Bridge is being built. Now this Chenab Bridge is an iconic bridge. Okay, we congratulate the Indian Railways, we congratulate Konkan Railway Corporation, AFCONS, VSK India, Indian Railways, and that Unity. There's a company, South Korean company called, if I remember right, Ultra Construction and Engineering. Now, all contracts were awarded in 2005. In 2005, Konkan Railway Corporation, Ultra Construction and Engineering of South Korea, AFCONS, VSK India had already been contracted. That project is being commissioned today. The point I want to make is, while today is an important day for the people of Jammu and Kashmir, an important day for the Indian Railways, the Indian National Congress congratulates the entire Indian railway system, public sector companies, private sector companies, but governance and continuity has to be recognized. This is a collective achievement. It's an achievement of the last 30 years. And this is the most complex project, geologically, geographically, security-wise, so many challenges we've had to face. So this is the background to this project. Some days ago I had given the example of BrahMos, the BrahMos missile. BrahMos missile is also an example of continuity in governance. Similarly, the Chenab project and the Udhampur, Srinagar, Baramulla link, this is all continuity in governance. Successive prime ministers have worked
to make these projects a reality, whether it's the BrahMos missile or whether it's the Udhampur, Srinagar, Baramulla rail link or whether it is the Chenab rail bridge. बढ़ती अगली खबर की ओर। समल हिंसा के बाद पहली बकरीद, पुलिस प्रशासन अलर्ट। बकरीद पर खास सतर्कता बरती जा रही है। नवंबर में हुई हिंसा के बाद यह पहली बकरीद है जिसे लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। 5 कंपनी पैक के अलावा पीआरएफ को तैनात किया गया है। चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने भी ईद उल जुहा पर माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का साइबर सेल लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रख रहा है। संभाल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि प्रदेश भर में बकरीद यानी ईद उल जुहा 7 जून को मनाई जाएगी। इसके लिए थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी है। जनपद संभल में 7 तारीख को ईद उल अजहा के अवसर पर 5 कंपनी पीएसी और आरआरएफ है डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ सभी थानों में और जनपद स्तर पे भी पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं वो पूर्ण कर ली गई है, जिसमें शहर मुफ्ती और तमाम विभिन्न मौलाना मुतवली सभी लोग आए थे। उन सबको हिदायत दी गई है कि जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय पे तक कुर्बानी करें। उसके बाद में नगर पालिका और विभिन्न क्लीनिंग की जो एजेंसीज हैं उन सबको भी बता दिया गया है समय रहते सफाई का कार्यक्रम भी है वो पूर्ण करें, जलापूर्ति है वो पर्याप्त मात्रा में रखें। उसके साथ साथ कुर्बानी उन्हीं जगहों पे दी जाए जो जगह पूर्व में निश्चित की गई हैं और कोई भी व्यक्ति किसी तरीके की कोई इन्फ्लेमेटरी या इस तरीके की भड़काऊ पोस्ट ना डालें जिससे कि लोगों को वैमनस्यता पैदा हो। ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया पे पूर्ण निगरानी है वो पुलिस के द्वारा रखी जाएगी। पूर्व में भी ऐसे जिसने भी कृत्य किए उन सभी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गई है। इसलिए मैं सभी संभल वासियों से अनुरोध करता हूं कि कोई भी ऐसा विभत्स वीडियो या कुर्बानी का ऐसा वीडियो ऑनलाइन यहाँ पे अपलोड ना किया जाए और सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में ना लेते हुए कोई भी अगर घटना होती है तो पुलिस को तुरंत बताएं। पुलिस सदैव आपके लिए तत्पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो ईद उल अजहा का जो अवसर है शांतिपूर्ण तरीके से गुजरेगा। कितने लोगों को पाबंद किया गया? इसमें अभी तक 200 लोगों को तामिला करवाया जा चुका है और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई है वो जारी है। बढ़ती अगली खबर क्यों। लखनऊ में 2.5 साल की बच्ची से रेप का आरोपी एनकाउंटर में घायल। लखनऊ के आलमबाग मेट्रो स्टेशन के पास एक पुल के नीचे अपनी मां के साथ सो रही 2.5 साल की बच्ची के अपहरण और बलात्कार के कुछ घंटों बाद यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी मारा गया है। मासूम से दरिंदगी के आरोपी को लखनऊ पुलिस ने शुक्रवार तड़के एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी की पहचान दीपक वर्मा के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसका पता लगाया गया है जिसमें वह शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे एक सफेद स्कूटर पर बच्चे के साथ भागता हुआ दिखाई दिया। वही डीसीपी सेंट्रल लखनऊ आशीष श्रीवास्तव का बयान सुनिए। गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ पहचान की गई? देखिए 5 तारीख की प्रातः 10 बजे थाना आलमबाग पर प्राप्त सूचना के अनुसार एक 2.5 साल की बेटी के साथ में रेप की घटना दर्ज की गई थी। जो रेप पीड़िता थी वो अपने माता पिता के साथ में चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रह रही थी। तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत कर 5 टीमों का गठन किया गया और जब हमने वहां मेट्रो स्टेशन पर लगे हुए कैमरों को देखा तो उस कैमरे से एक सफेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पहचान में आई, जिसका नंबर पढ़ने के बाद ये ज्ञात हुआ कि ये स्कूटी दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा की है। फोटो से जो हमारे पास फोटेज थी उससे अपराधी की पहचान हुई। घटना इतनी जघन्य थी, तत्काल कमिश्नर लखनऊ सर को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करने हेतु पदक प्रेषित किया गया और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। अभी 20 घंटे के भीतर ही आज दिनांक 6 तारीख की रात में थाना आलमबाग की पुलिस टीम की अपराधी के साथ में मुठभेड़ हुई है, जिसमें जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर है। उसको इलाज हेतु लोकबंधु अस्पताल भेजा गया है। इस अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और कुछ खोखे बरामद हुए हैं। इसके ऊपर पूर्व में हरिगंज में एक अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य जानकारी की जा रही है। सर, इस मुठभेड़ में क्या कोई पुलिसकर्मी जो घायल हुआ है? हाँ, मुठभेड़ में जो एसएचओ आलमबाग हैं उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी है और उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग हुई है, लेकिन इसमें पूरी मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आरोपी क्या करता था, क्या कुछ इस मामले में जानकारी लग पाई है सर? आरोपी के बारे में प्रथम दृष्टया जो जानकारी है वो रेलवे में पानी बेचने का काम करता था, वेंडर था। साथ ही छोटे मोटे जागरणों में चौकी जगराते वगैरह काम करता था। विक्टिम की अगर हालत की बात की जाए उसकी कंडीशन कैसी है सर?
विक्टिम की हालत अभी गंभीर है, लेकिन उसका इलाज सक्षम हाथों में हो रहा है। केजीएमयू में वो इलाजरत है। आज संभवतः उसकी सर्जरी भी की जाएगी। ढूंढ लिए थे आप हैं? अब इसको ढूंढ लिए थे। उसमें देखिए सर, आगे हाथ ना लगने पाए उसको। ये बात बोलो ना 3 घंटे से यहाँ पे हाथ लग जाएगा। हाँ सर, बढ़ती खबर की ओर। गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले हर समस्या पर होगी प्रभावी कार्रवाई। सीएम आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित दिया है कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं, समस्या से जुड़ी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित करें। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि घबराइए मत, सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी। वही जनता दर्शन में हर बार की तरह कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। सीएम ने उन्हें भरोसा दिया है कि धन के अभाव पहुंचे रेलवे ब्रिज पर पीएम मोदी ने लहराया तिरंगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज पीएम मोदी ने पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब का उद्घाटन किया। उन्होंने चिनाब ब्रिज का जायजा भी लिया है, इसको बनाने वाले कामगारों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने इसी ट्रैक पर बने अंजी ब्रिज का भी लोकार्पण किया। यह देश का पहला ऐसे रेलवे ब्रिज है जो केबल स्टेड तकनीक पर बना है। यह ऐतिहासिक पुल न सिर्फ कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी नई गति देगा। पीएम जम्मू कश्मीर में 46,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं। वह कटरा से श्रीनगर के लिए शुरू होने जा रही है। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन के जरिए जम्मू से श्रीनगर का रास्ता। बेटे का सवाल और थरूर का जवाब, क्या हुआ जब अमेरिका में आमने सामने आए पिता और कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस समय ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पेश करें। इसी बीच उनसे न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं के बेटे ईशान थरूर ने तीखे सवाल पूछे। ईशान थरूर वाशिंगटन पोस्ट में विदेश मामलों के पत्रकार हैं। बेटा जैसे ही सवाल पूछने के लिए खड़ा हुआ, शशि थरूर ने मुस्कुराते हुए कहा है कि इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह मेरा बेटा ईशान थरूर है। बिना किसी एक्सप्रेशन के बेटे ने जवाब दिया, मैं वाशिंगटन पोस्ट के लिए ईशान थरूर। ईशान ने पिता से ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने पूछा है कि आप भारत के राजनयिक आउटरीच प्रयासों के तहत पश्चिमी देशों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच क्या किसी देश ने आपसे पहलगाम हमलों में पाकिस्तान का हाथ होने से सबूत मांगे हैं? क्योंकि पाकिस्तान बार बार इस हमले में अपनी भूमिका से इनकार करता रहा है।
शशि थरूर ने बेटे के सवाल पर जवाब देते हुए सबसे पहले कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस सवाल को उठाया है। ईशान, पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका साबित करने के लिए हमसे किसी ने सबूत मांगा या नहीं, इस पर जवाब देते हुए ईशान ने कहा है कि किसी ने हमसे सबूत नहीं मांगा क्योंकि किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन 2 से 3 जगह पर मीडिया ने हमसे यह सवाल पूछा। That shouldn't be allowed. This is my son. Ishan Tharoor, The Washington Post. Definitely asking a question in personal capacity. And mostly to say hi before you go off to your next engagement. Raise the mic. Mostly to say hi before you go off to your next engagement. I'm curious though, on this tour you've been on, various countries in the Western Hemisphere, have any of your government interlocutors asked you to show evidence of Pakistan's culpability in the initial attack? And what do you say to the repeated Pakistani denials of having any hand in the initial attack? Okay, well, I'm very glad you raised this, Ishan, though I didn't plant it, I promise you. This guy does this to his dad. Very simply, no one had any doubt, and we were not asked for evidence. But media have asked, and so you are speaking for your tribe in that in 2 or 3 places media asked this question. Let me say very clearly that India would not have done this without convincing evidence. But there were 3 particular reasons I want to draw your attention to, all of you. The first is that we've had a 37-year pattern of repeated terror attacks from Pakistan accompanied by repeated denials. I mean, Americans haven't forgotten that Pakistan didn't know, allegedly, where Osama bin Laden was until he was found in a Pakistani safe house right next to an army camp in a cantonment city. That's Pakistan. Mumbai attacks, they denied having anything to do with it. One of the terrorists was captured alive, his name, his identity, his address in Pakistan, everything was revealed. Under interrogation he told us where he was trained, what was done. The US intelligence, as well as ours, recorded the chilling voice of the Pakistani handler giving minute-by-minute instructions to the killers in Mumbai, telling them where to go, and they were monitoring Indian TV and saying there are people hiding on the 3rd floor of that hotel, go and shoot them there. This kind of thing is going on. Your sources recorded this too. So we know what Pakistan's all about. They will dispatch terrorists, they will deny they did so until they're actually caught with red hands. That's the first. So I agree you're going to say, but that's circumstantial. Sure. Second point. The moment this happened, within 45 minutes or so of this happening, the terrorist attack, a group called the Resistance Front claimed credit. Who are the Resistance Front? They're a well-known proxy front of the Lashkar-e-Taiba, a banned organization listed by the United Nations, listed by the US State Department, which enjoys safe haven in the town of Murid-K in Pakistan. The Resistance Front, evidence about the Resistance Front and its doings was presented by India to the UN Committee on Terrorism in December 2023 and repeatedly again in 24. But the problem was, of course, Pakistan too is a member of that committee. The Resistance Front was not listed by the UN, but its identity was known and publicized. These people then claimed credit within a time span. There were no media present when these killings took place. Most of the world hadn't even learned about this when they claimed credit. So that was itself a smoking gun. They repeated that claim 24 hours later. And having repeated that claim 24 hours later, then their handlers must have woken up to the gravity of this and told them to take it off their site. So they did. But the fact is, the credit claim was on record and the world has seen it. Third, when the first strikes happened on the terrorist camps, funerals were conducted, including for members of some of the key organizations, the Jaish-e-Mohammed in particular, and the Lashkar-e-Taiba. The funerals were conducted and photographs have emerged on social media showing Pakistani generals and police officers in uniform attending these funerals, being conducted by relatives of these terrorists. So we're looking at 3 concrete pieces of evidence as far as India is concerned. But finally, I can add to the mix, we also have intelligence services. They have been studying very carefully these terrorist attacks. They have identified at least 4 of the 5 perpetrators, and they know who they are. In fact, I'm told, and I don't have access to the direct intelligence information, but I've been reliably informed, they know that 2 of them are Pakistanis, and the other 2 were locals who had exfiltrated, is the term, out to Pakistan for training 10 years ago, and clearly were sent back for this mission this time. So it's on the basis of all of this put together that we said, we know who did this, and we will take action.
And that's exactly what we did. I can assure you India is not the kind of country that would undertake a military operation without very solid basis for doing so. This was not some random terror attack. I must say our government counts 24 terrorist attacks in the course of last year emanating from Pakistan, but none of them required this kind of response. We dealt with them. We either got the terrorists or killed them. Minimal damage, very little loss of life. We dealt with it. This showed all the hallmarks of a sophisticated, planned, deliberate operation with reconnaissance, with intelligence work, with a modus operandi worked out, this cynical exercise of asking people their religion, shooting them between the eyes. This is not an ordinary terrorist, some bearded fanatic blowing himself up outside a supermarket. This is not that. This is a serious quasi-military style operation, and it required a military response. As I mentioned, we have बढ़ती अगली खबर क्यों? देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने डराया कर्नाटक में अब तक 7 लोगों की मौत। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक में कोरोना वायरस से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इसी के बाद कर्नाटक में कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या 7 हो गई। कर्नाटक के दावणगेरे में 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। सामने आया है कि व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित था। इसी के साथ वह बाकी और बीमारियों से भी पीड़ित था। व्यक्ति के निधन से गुरुवार तक कर्नाटक में कोरोना वायरस से संबंधित मौतें की संख्या 7 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 31 मई को दावणगेरे के सरकारी अस्पताल में व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। कर्नाटक में गुरुवार को कुल संक्रमित मामले 65 थे, जिससे जनवरी से अब तक सामने आए कुल मामले 796 हो गए हैं। वहीं पूरे देश की बात करें तो देश में फिलहाल 4866 एक्टिव केस हैं, वहीं 3960 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। बढ़ते अगली खबर क्या? पंचकुला में एक मॉल के बाहर गोलीबारी की घटना में की मौत। हरियाणा के पंचकुला में एक मॉल के बाहर गोलीबारी की घटना में एक की मौत हो गई है और एक घायल हो गया। फायरिंग की घटना पर डीसीपी सृष्टि गुप्ता का कहना है, रात करीब 10:45 में हमें सूचना मिली है कि फायरिंग की घटना हुई है। मौके पर पहुंचने पर पता चला है कि सोनू नोलटा नाम के 2 लोगों और एक अन्य व्यक्ति को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी। घटना में सोनू नोलटा की मौत हो गई है, दूसरा व्यक्ति खतरे से बाहर है। कुछ लोगों ने जिम्मेदारी ली है, हम इसकी आगे की जांच कर रहे हैं। 11 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी 112 के थ्रू कि गोलियां चली हैं। तो जब मौके पर आए तब वी वांट टू नो कि एक नोल्टा करके बंदा है, सोनू नोल्टा, उसको और उसके साथ एक व्यक्ति थे, उनको गोली मार के लोग चले गए हैं और सोनू नोल्टा की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और जो दूसरे व्यक्ति हैं इज आउट ऑफ डेंजर, वो आगे रेफर हो गए थे। मतलब वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सोशल मीडिया पे कि उसमें कह रहे कि हमने किया है या कुछ ऐसा? जी, हम उसको भी एनालाइज कर रहे हैं। मतलब किसी बंदे ने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इंसिडेंट की, उसकी खोज कर रहे हैं जल्दी से। बढ़ती अगली खबर की ओर। राहुल गांधी के बयान पर शशि थरूर से अमेरिका में सवाल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर गुरुवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवाद से जुड़े संघर्षों में मध्यस्थता की भूमिका के बारे में संदेह व्यक्त किया है। जब उनसे पूछा गया है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उपलब्ध होना मददगार है, तो थरूर ने कहा है कि मध्यस्थता एक ऐसा शब्द नहीं है जिसे हम विशेष रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप एक ऐसी समानता का संकेत दे रहे हैं जो बस मौजूद नहीं है। आतंकवादियों और उनके पीड़ितों के बीच कोई समानता नहीं है। आतंकवाद को सुरक्षित पनाह देने वाले देश और एक ऐसे देश के बीच कोई समानता नहीं है जो एक समृद्ध बहुदलीय लोकतंत्र है जो अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। India has been firm enough in its response to the बढ़ती अगली खबर क्यों? पूर्व सीएम भूपेश बघेल की खरी खरी जाति जनगणना को लेकर सरकार की मंशा पर उठाए गंभीर सवाल। जाति जनगणना को लेकर देश में फिर से बहस तेज हो गई है। हालिया बयान में पूर्व सीएम ने स्पष्ट किया है कि यदि इस प्रक्रिया को सिर्फ एक जाति कॉलम तक सीमित कर दिया गया तो इसका कोई व्यापक सामाजिक या आर्थिक लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि यह केवल आंकड़ों की गिनती नहीं है बल्कि एक समग्र सर्वेक्षण होना चाहिए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को शामिल करे। उनका मानना है कि जब तक इसमें वास्तविक बजट और समर्थन नहीं होगा तब तक इसका कार्यान्वयन अधूरा ही रहेगा। उसे इस बात पर भी चिंता जताई है कि अभी तक जाति जनगणना को लेकर ना तो कोई ठोस बजट आवंटन हुआ है और ना ही कोई मजबूत नीति सामने आई है। देखिए, जो बातें राहुल जी ने कही है, इसमें जब जाति जनगणना करें तो उसमें किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए, किन किन बिंदुओं को समावेश किया जाए, वो जो प्रोफार्मा है, जो चार्ट है, वे विपक्षी दल के नेताओं से भी
रायशुमारी करके ही वो चार्ट बना है, क्योंकि वो केवल जाति का एक कॉलम भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पहलुओं पर उसमें सर्वे होना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उस जाति को उसका लाभ मिल सके। लेकिन अभी तक के कैबिनेट में भी बात हुई, आज रिजिजू जी ने घोषणा कर दी, लेकिन न वो बजट में शामिल है, न बजट में उसका कोई प्रावधान है, और किस प्रकार से होगा, जाति के कॉलम होगा। आज जो समाचार पत्रों में जो पढ़ा वो केवल जाति के कॉलम होगा, इतनी भर बात है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उज्जैन में निवेशकों से मिले सीएम मोहन यादव। उज्जैन में निवेशकों से मिले सीएम मोहन यादव। आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेशकों के साथ विशेष बैठक की। इन बैठकों में उन्होंने प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल, सरकार की नीतियों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। सीएम ने निवेशकों को आश्वासन दिया है कि मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक, पर्यटन और वेलनेस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उज्जैन जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर निवेश के व्यापक अवसर मौजूद हैं। यह पहल न केवल आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि रोजगार। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।